नमस्कार भाई दोस्तों। जथेदार भाई जगतार सिंह वारा को लेकर जो खुलासे हुए ना, वो हर एक सिख को पता होना चाहिए। सभी को पता होना चाहिए, तब आपकी समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। चल क्या रहा है। बंदी सिंह गिरियाई का मोर्चा लग गया हुआ मुअल्ली के अंदर, सबको पता है। मुअल्ली मोर्चे के अंदर जितने भी सिख जाते हैं उनको ही पता होना चाहिए, इस चीज का पक्का पता होना चाहिए जो जथेदार भाई जगतार सिंह वारा के बारे में बताया गया है। खुद उनके वकील साहब ने बताया है। हम तो हैरान है कि ऐसा भी होता है क्या। उसके बाद जो वित्त मंत्री है अपनी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कल जो पेश किए, आंकड़े पेश किए। अभी भी चिंटू मिंटू की आंखें नहीं खुलेंगी। गोदी मीडिया इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करेगा, हमारे को पता है। और जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री साहब ने बोला, उन्होंने बताया सही मायने में जो आतंकवादी आतंकवादी बोलते हैं ना, हकीकत में होते कौन है। वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री साहब से पूछ लो, उन्होंने तो खुल के ही बोल दिया। तुम यहाँ पर जो सिखों के बारे में बंडी प्रचार कर रहे हो ना, वो उन्होंने खुल के जवाब दे दिया। आपको पूरा बताएंगे डिटेल में। सबसे पहले तो आप है ना न्यूजीलैंड वाले साहब की सुन लो फिर एक बार। But that's what I expressed very strongly, promised to Modi, and what I said publicly and privately. If the Al Qaeda or the ISIS were to hold a referendum, if organizations like the Al Qaeda or ISIS were to hold a referendum in New Zealand about something related to one of your Western partners, would you say the same? Well, again, the key thing for us is that we have very well defined laws in our democracy around the freedom of speech, and we expect people to be compliant with those laws. That they have a complete right to protest, but they have to do so in a way that is legal. And when it's not the case, that's when our police, who we have huge respect for, that had done an excellent job in New Zealand of enforcing our laws, it's important that they're upheld. And so it's as simple as that for us. It's it's very much a case of we expect people to exercise their protest. They're entitled to do so in a democracy. It's important, but equally we expect that actually they are compliant with our laws at any point of time. Sikhs for Justice is a banned terrorist organization according to the government of India, and it operates in New Zealand. As the leader of a country that is exploring a deeper partnership with India, are you willing to be open to these concerns from New Delhi on acting against groups which India perceives as threats? Well, I've heard the broad perspective of the Indian government around that particular issue, but as I keep coming back to you to say, as a sovereign, as a democracy that respects sovereign borders and sovereign nation states, we have strong laws in our system to protect free speech, but also to ensure that free speech is compliant with our legal system. And that's what, as a New Zealand Prime Minister, that's what I want to make sure we uphold in our society. And so we'll continue to, we as I said, we really are proud of free speech, but we also get free speech that comes with some responsibilities, and that is to make sure that it's fully compliant with our legal framework as well. You went खुल के बोल दिया हर एक बात के ऊपर। एसएफजे को जो बैन करने की डिमांड की थी, उसके ऊपर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री साहब ने तो बिल्कुल ही खुल के बोल दिया। अब क्या करेंगे चिंटू मिंटू, ये तो हमारे को नहीं पता। चिंटू मिंटू के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो जथेदार भाई जगतार सिंह वारा के लिए सामने आई है, हम तो हैरान है कि ऐसे भी चल रहा है। आपको खुद उनके जो वकील साहब ने बोले ना, पहले वो सुनवाते हो ना, चिंटू कहीं जाना मत। उसका भी एक नया वीडियो आ गया है, गुरपंत पन्नू का भी वीडियो आ गया है एक नया, कहीं भाग जाओ। पहले तो ना तुम ये सुनो। जगतार सिंह हवारा साहब का के बारे में भी तो साफ तौर पे बता सकता हूं, क्योंकि उनका केस मुझे पूरी तरीके से पता है। क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा जत्थेदार हवारा साहब को सजा नहीं हुई है। इस केस में भी मैं आपको बता रहा हूं ये बात, जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है वो कॉन्विक्ट नहीं है। ये हमारे देश का वो संविधान है। और प्रधानमंत्री राजीव जी को मारने वाले जिनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई थी, उनको अगर बाहर किया जाता है तो जत्थेदार हवारा साहब को, बाकी बंदी सिंहों को बाहर होना चाहिए, वरना यह संविधान के साथ अपराध है। अगर बिल्किस बानो, आप लोग सब जानते हैं, उसके अपराधियों को जिसको सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई थी, वो लोग बाहर निकाले गए, तो बंदी सिंह जेल में है, तो यह संविधान के साथ अपराध है। तो हम लोगों ने कानूनी रूप से पूरा फुल प्रूफ केस बना दिया, लेकिन मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारी अदालतें भी, 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस कह चुके हैं कि हम लोग दबाव में। बड़े कमाल की बात है भाई, इससे ज्यादा कमाल आप कहीं पे देख सकते हो? कहीं पे देख सकते हो क्या? देश के गृह मंत्री साहब राज्यसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि अगर वो लोग माफी मांग लेंगे तो, अभी तक उनको कोई सजा ही नहीं हुई है और 30-30, 35-35 साल जेलों के अंदर हो गए और केस पेंडिंग। केस पेंडिंग। क्या राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं था क्या जिसको मारा गया? उसके हत्यारों को सजा माफ हो सकती है? वो प्रधानमंत्री नहीं था क्या?
कमाल की बात है। बिल्किस बानो के संस्कारी बलात्कारी बोल के छोड़ दिया जाता है। बड़े कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात है। और जो पन्नू वीडियो बना के जारी कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, दे देगा भगवंत मान जवाब? नहीं लग रहा। भगवंत मान भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है। अगर बोला वही काम है शब्जे कर दे, तो क्या शब्जे को अपना आदर्श मान लेगा? वीडियो मतलब क्या ऐसा हो जाएगा, अगर सुनोगे ना तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे कई लोग दिक्कत में आ जाएंगे, फिर ये लगेंगे। दूसरी तरफ सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी क्या बयान दे रही है, फिर भी लोग मतलब के मुंह बंद किए हुए हैं। पिछले 10 सालों में कितना बढ़ा देश पर विदेशी कर्ज, सरकार ने दिए चौंकाने वाले आंकड़े। ठीक है, भारत में पिछले 10 साल में विदेशी कर्ज बढ़कर करीब $250 बिलियन से ज्यादा हो गया है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई। कमाल ही हो गया भाई। 31 मार्च 2014 को देश पर कितना विदेशी कर्ज था और 31 दिसंबर 2024 आते आते कितना हो गया? इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने मंत्रालय में बताया कि फिलहाल सितंबर 2024 के आंकड़ों के मुताबिक देश पर फिलहाल $711.8 बिलियन का विदेशी कर्ज है, जबकि मार्च 2014 में यह $446.2 बिलियन था। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों के दौरान देश का विदेशी कर्ज करीब $265 बिलियन बढ़ गया है। कौन देगा इसका जवाब? ये कौन सा विकास हो रहा है? कहाँ क्या लिया भाई? कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, कोई IIT IIM बनाया, कुछ तैयार किया हो देश में, या रोजगार उपलब्ध कराया गया हो देश में, करवाया गया कुछ? अगर ये सवाल पूछे जाएंगे ना तो फिर इनको तिलमिलाट शुरू हो जाएगी। तिलमिलाट शुरू कर देते हैं। मंडिया और उसके दलालों के अंदर हिम्मत है? आप जेब में प्रश्न क्यों नहीं रखते ना? विदेशी कर्ज कैसे बढ़ गया पिछले 10 साल में? इतना ही तो 70 साल में, इतना 10 साल में कर दिया। कमाल ही हो गया भाई। इससे ज्यादा कमाल क्या होगा? कहाँ के लिए लिया है कर्ज? वो रोजगार के साधन उपलब्ध कराए? हाँ, चंगू मंगू भिख मंगू पूछोगे अपने पोपो से, तुम्हारा पोपो ना कुछ नहीं बोल रहा। वो लुकवा दी पोपो, देश को कर्जे में डुबो दिया तुम्हारे पोपो ने। कभी पूछोगे इसके बारे में सवाल? नहीं पूछ सकते। उधर से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री साहब तो बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं, मेरे दर में तो कोई सिख आतंकवादी नहीं है, सबसे बड़े बड़े आतंकवादी तो खुद हैं। लेकिन नहीं, सवाल करना नहीं है, दूसरा कोई करे तो उसका जवाब देना नहीं है क्या? नहीं, इतना कर्ज बढ़ गया देश के ऊपर, रोजगार खत्म कर दिए। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाला हर साल 4 करोड़ रोजगार खा रहा है। पेंशन खत्म कर दी लोगों की, पर 5 केजी दाने तो मिल रहे हैं ना, वो लेते रहो, लाइन में लगे रहो और वो बस लेते रहो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारी औकात ही इतनी है, और तुम्हारी औकात दिखा रहा है कि तुम्हारी औकात 5 केजी अनाज की ना कि रोजगार की औकात है तुम्हारी। रोजगार नहीं दिए जाएंगे, लेकिन हाँ, ट्रम्प साहब कुछ बोलेंगे उसको सब कुछ दे दिया जाएगा, सब कुछ न्यौछावर कर दिया जाएगा, क्योंकि जगत सेठ को बचाना है। गुंडी फंसी हुई है निखिल गुप्ता नाम की, उससे भी तो निकलना है ना, नहीं तो अमेरिका फिर समन जारी कर देता। एक समन में यहाँ पो कहानी पलट जाती है। तुम्हारे को पता ही नहीं देश के अंदर चल क्या रहा है, बस लगे रहो, हवा में बात करते रहो। हवा में बात नहीं होती कभी भी हवा में बात निकलनी चाहिए। जो सच है ना वो सच बताना चाहिए। सच बताओ, सच ये है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में राय रखना है दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।